is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country. There's the election commission in the country. Right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it is the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you've been robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. 1 महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते. हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते. और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए. जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स साफ, इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा. तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र. ये क्रिमिनल
एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी ज़रूरी बैठक से निकलकर यहाँ आए हैं आपको संबोधित करने के लिए। उनको उस बैठक में वापस लौट जाना है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। No, 1 second. Look, 1 second. Look, please understand. This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay. So we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. एक मिनट। नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना है। साथियों, अभी कोषाध्यक्ष जी आपको विस्तार से संबोधित करेंगे। शुरू कर दो यार। आप लोग हाँ, सब लोग सेटल हो जाएं। सब लोग सेटल हो जाएं। अभी जैसे हम लोगों ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से हम लोगों के बैंक अकाउंट्स के ऊपर हमला हुआ, अकाउंट्स को एक तरीके से पूरा फ्रीज किया गया, लियन मार्क करे गए। हमारे 11 अकाउंट्स कुल 4 बैंक्स के अंदर थे और कुल 210 करोड़ से भी अधिक, कुछ बैंक्स के अंदर 135 करोड़, कुछ बैंक्स के अंदर 75 करोड़ रुपए के नोटिस दे करके लियन मार्क किया गया। और इसी बीच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खुद जा करके बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के हमारे बैंक से जबरदस्ती हमारे पैसे इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर कराए, लगभग 115 करोड़ 32 लाख रुपए के अमाउंट के। और वो पार्टी
जिसको पूरी ताकत के साथ में चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभानी चाहिए, वो पार्टी चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभाने की जगह इनकम टैक्स के ऑफिसेज, बैंक के मैनेजर्स के पास में और कोर्ट्स के ऑफिसेज के ऊपर चक्कर काट रही है, वकीलों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम लोग किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में हम शामिल हों, उसकी तैयारी करने की जगह। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे ना केवल रिसोर्सेज बल्कि हम लोगों का समय, हम लोगों की पूरी ताकत इस काम में लगने की जगह कि कैसे लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों, उसकी जगह के ऊपर कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसों को बचाया जा सके, उसमें लगे तो किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है। तो इस बारे में मैंने पूरी अभी जानकारी दी है। आप लोग कोई प्रश्न इस पे पूछना चाहें, और मेरा स्टेटमेंट भी सर्कुलेट हुआ है, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो बेशक आप पूछ सकते हैं। माइक में बोलिएगा। यस सर। सर, आप लोग राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पर उंगली उठा रहे हैं कि उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले आईटीएटी से कांग्रेस को राहत नहीं मिली, और इसके बाद जब आप हाईकोर्ट गए वहां पर भी आपको राहत नहीं मिली, वापस कहा गया कि आप आईटीएटी जाइए। तो क्या ये जो न्यायिक संस्थाएं हैं ये भी राजनीति से प्रेरित हैं? इस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए, आईटीएटी न्यायिक संस्था नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हाईकोर्ट ने हमारे को वापस आईटीएटी के पास में भेजा। हाईकोर्ट ने कोई हमें मना नहीं किया इस तरीके से। हाईकोर्ट ने कहा आप वापस आईटीएटी के पास में जाएं और आईटीएटी उसको देखे। आईटीएटी के पास में जब हम लोग पिछली बार गए तो उन्होंने अपना जजमेंट बेशक हमारे खिलाफ है, उसको देने में ही 2 हफ्ते 14 दिन लगा दिए। तो आप समझ लें कि जहां पे 1-1 घंटा इस वक्त हमारे लिए कीमती है, वहां पर वापस आईटीएटी से क्या जाकर के न्याय मिलेगा। और आईटीएटी का जो दिल्ली में हेड करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हम सब लोग जानते हैं। अब जो है अंततः जब तक के कोई भी इनकम टैक्स केस में या कोई भी केस के अंदर हाईएस्ट लेवल तक के जाने का मौका मिलता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। लोकतंत्र के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम के ऊपर हमारे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए, हमारे को पूरे के पूरे उसका इस्तेमाल करा जाना चाहिए। जो फाइनल फैसला अंततः जब कोर्ट से जो होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोर्ट में जाकर के 3 महीने बाद हमारा फैसला हमारे हक में भी आ गया, तो ये समय 4 महीने का हमारे को कौन और लोकतंत्र को कौन वापस देगा। तो इसको लेकर के हम लोग आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, कोर्ट का भी दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से जनता का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं और आपका दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से हालात हमारे देश में हो रहे हैं। माकन जी, अभी द कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड दैट ये एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, एंड द अदर कांग्रेस लीडरशिप सेड दैट दिस इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कंटिन्यूअसली सेइंग दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इज इंडिया हेडिंग, जैसी सिचुएशन है where the finances of the principal opposition party is being crippled, तो ऐसे में क्या is India heading towards a country like other dictatorship countries? Is it heading where the elections is one-sided and 95% votes goes? As the treasurer of principal opposition party, I can say there is no democracy. If I can't spend my own money collected from my own workers, so these 285 crores we collected through crowdfunding. It also included Youth Congress's membership money, it included our membership money, it included NSY's money. So if we can't spend our own money, where is democracy? It is already there. Not why headed. It is already if the present situation is not a democratic situation where the principal opposition party doesn't know how to contest election, how to send money to its candidates. माकन सर, आप लोग ये एक आपने तकनीकी पहलू तो आप इनकम टैक्स का सब बता रहे हैं, लेकिन बात आज आप लोगों ने मंच से राजनीतिक करी है, राजनीतिक पहलू पे बात करी है। तो एक दरवाज़ा जो है वो राष्ट्रपति का भी है, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। क्या वो रास्ता खुला हुआ है? और साथ साथ अपोजिशन
कि सभी पार्टियां इंडिया ब्लॉक को भी आप साथ में लेके वो दरवाजा खटखटाएंगे क्या? देखिए, हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दरवाजे और सभी जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको हम अपनाएंगे। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे और कोई भी लोकतांत्रिक तरीका ऐसा नहीं है जिसको हम अपनाने से परहेज करेंगे। हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा और हर लोकतांत्रिक दरवाजा लोकतंत्र का खटखटाया जाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। सर, आप कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और वाकई आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है, फ्रीज है। सर, सवाल ये है कि आप लगातार, राहुल गांधी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है आपके लिए, तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो चुनावी मैदान में क्या उतरेंगे? इसको लेके क्या विकल्प आपके पास है? देखिए, हम लोग सभी विकल्प जो लोकतांत्रिक विकल्प हैं उसको हम लोग अपनाएंगे। हम कोर्ट के, न्यायालय के सबसे बड़े दरवाजे तक के हम लोग जाएंगे, खटखटाएंगे और जो भी लोकतांत्रिक तरीका है ज़मीन पे उतर करके लड़ने का, अपने कार्यकर्ताओं के पास में जाने का, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करने का कि हम लोगों को मदद करें, कैंडिडेट्स को डायरेक्टली मदद करें, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में। आप देखिए, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने संज्ञान लिया, आपके सामने बताया, चिंता जाहिर करी, ये इसको हम आगे और लेकर के जाएंगे। अजय जी, यहाँ पर लगातार बात हो रही है, कल पहले चरण का अधिसूचना भी जारी हो गई। क्या कारण है कि कांग्रेस अभी तक चुनाव आयोग के दरवाजे नहीं गई है? जो इस पूरी जो कार्यप्रणाली है उस पर उसने साफ तौर पर कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबको समान अवसर मिलेगा और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हाई कोर्ट भी हम लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी लीगल हमारे पास में पोजीशंस हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग सभी लीगल वेन्यूज जो हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पार्टी के अंदर जो टॉप लीगल ब्रेन्स हैं, अभिषेक सिंघवी, चिदम्बरम, तनखा जी, सलमान खुर्शीद जी, सभी के सभी लोग इसमें हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं और हम लोग इसको हर दरवाजे पे हम जा रहे हैं। मोहित ने जो सवाल पूछा उसी के एक्सटेंशन में मैं आगे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई और रास्ता नहीं रहता है, क्या आप लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं कि आप चुनाव बाइकआउट कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। सर, सर आप टैक्स रिटर्न के मामले में कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हुआ है। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड है, उसको बहुत बड़ा घोटाला कह रहे हैं। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोर्स किया है कि वो इसके बारे में बोले और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में हम लोगों ने भी कुछ कार्रवाई करी है, उसको हम अलग से प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे और उसको भी, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी देना चाहेंगे कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाध्य किया कि वो सारी के सारी बात बताए और आगे अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये बाध्य करे सबको कि किस कंपनी ने किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कितना दिया है और कब दिया है, इस चीज की भी जानकारी सार्वजनिक हो। तो केवल ये जानकारी सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने जमा कराए। ये मैच भी होना चाहिए कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को और किस तारीख को दे। जब तक वो तथ्य सामने पूरा नहीं आएगा, जब तक इसमें सही मायने में सारी बातें साफ नहीं होंगी। अजय सर, एक न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया में पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया, वो कहा है कि मुझे 104वीं बार गाली दी गई है, औरंगजेब कहा गया है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, आज भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा एक्शन हुआ है? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक्शन होना था वो 2014 से पहले ही हुआ है। जितने भी लोगों के ऊपर केसेस बने
वो 2014 से पहले ही बने, 2014 के बाद तो कुछ नहीं हुआ है। You're saying that there's no level playing field with the freezing of your account. So how are you planning to take this message forward to the people of the country that the level playing field is being deprived to the Congress party? Well, we are taking it through the press conference. This is the first step which we have done, and it is not the first time that I am doing so. This is my third press conference on this issue. So after two press conferences, which I did alone, I thought that it is very much required that the senior leadership also should be present so that it passes on to the people. So I am very happy. We are happy. I thank Jairam Ramesh ji. He could organize senior leadership also speak on this issue. Tomorrow, PCC presidents across the country and also our ex-chief ministers across the country, they are also taking up this issue through various press conferences. And then we are going to hit the ground also on this. So we have a plan in place and we are going to take up. Sir, yesterday the Home Minister reiterated that the electoral bonds is basically to remove the black money. It was in some level able to do so, but the Congress party and the other opposition parties are frustrated because the old system of hafta vasuli or the cut money is not possible anymore. That is why they got 5 times more than the principal opposition party. They've got 5 times more than the principal opposition party. That is why they are unable, the SBI is unable to tell so far which company has given how much to a political party and when. So if it is not black money, then it should be open. Then all the companies, which company has given to which political party and when, should be open. Let me answer your question. We have done an analysis, which I will be putting out shortly. Out of the 8,000 crores of electoral bonds that the BJP has got, we have been able to directly correlate 4,000 crores of electoral bonds with 4 lakh crores of contracts. This is Chanda Do, Dhanda Lo. That's all it is. This is Chanda Do, Dhanda Lo. 4,000 crores out of 8,000 crores is directly linked with 4 lakh crores worth of contracts awarded by the government of India, not by any state government, awarded by the government of India. So the Home Minister should get his facts right. Thank you. Sorry, next time. Sorry. अच्छा शाम को आपको एक पहला